guys, today we have to do algebraic of function, algebra of function. What is algebra of function? Algebra क्या? What is algebra? Algebra, suppose two integers are there, a and b, है ना? तो then a plus b, a minus b, a into b and a divided b. These are algebra of two numbers. Same like that. Suppose two functions are there. Suppose two functions are there. Algebra. We are going on algebra of functions. Algebra of function. Earlier we have done. We have seen so many functions, basic concepts of functions. है ना? तो in algebra of function, two functions. Suppose, yeah, if f and g are two functions, with domain a and b, ठीक है, with a and b, then with domain a and b, then f, then find then f plus g, f minus g, f dot g and f divided by g, having having क्या बोल सकते, having domain a intersection b. ये समझ में आ गया होगा. Suppose two functions f and g are two functions with domain a and b, then f plus g, f minus g, f into g and f divided by g, having domain a intersection b. Then for any x belongs to R, f plus g, x equal to f of x plus g of x, f minus x, f of x minus g of x, and f into g of x, f of g of x, and f divided by g of x, f of x divided by g of x. This is the concept. This one is the concept of algebraic of functions. Algebraic of function f plus g. F plus g, that means addition of two functions. F minus g, that means subtraction of two functions. F into g, that means multiplication of two functions. And f divided by g, that means first function divided by second function. Here one condition is there, g of x not equal to, should not equal to, g of x should not equal to 0. Got it? यहाँ पे एक कंडीशन होगी जहाँ पर ये फुलफिल करेगा, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए. कौन सा? g of x. तो now we'll see one example
depend on these functions, these type of functions. एग्जाम्पल है जैसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है, आया हुआ था आपका इसमें फंक्शन if f of x equal to x square plus 5 x square plus 5 or 2 x square plus 2 and gx equal to and g of x equal to 5x minus 8 5x minus 8 then find f plus g of 1। देखिए सिंपल एक प्रॉब्लम है जो आपको इस एल्जेब्रिक ऑफ फंक्शन पे कॉन्सेप्ट पे डिपेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल टू फंक्शंस हमने देख लिया, अगर टू फंक्शंस है डिफरेंट सेट के डोमेन है उसके विद डिफरेंट डोमेन, देन दिस वन इज हैविंग डोमेन इंटरसेक्शन बी। याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट, ध्यान में रखिएगा। इफ एफ ऑफ एक्स, तो पहले तो किसी भी प्रॉब्लम को बिफोर सॉल्व any problem, first we have to write given part of the problem। given part क्या है? f of x, that means given function f of x equal to x square plus 2 and g of x equal to 5x minus 8। Got it? Then clearly we know that f plus g of x equal to f of x plus g of x। Put the value f of x square plus 2 plus 5x minus 8, got it? f plus g of x। अब what we have to find? This one, f plus g of 1, that means if we put x equal to 1, then clearly f plus g of 1, f plus g of 1 equal to, यहाँ पे we put x equal to 1 in both the sides, both the sides 1 plus 2 plus 5 minus 8, that means 3 minus 3, तो इसका क्या आ जाएगा 0। therefore f plus g of 1 equal to 0। this is the answer which we have to find। जो हमको फाइंड करना है वही आंसर आपका, मतलब f plus g of 1 equal to 0 is the answer। How to find? You know very well। First we have to put given functions, then we have to put knowing concept which are related to concept, this concept है ना, algebraic of functions concept, तो उसका यूज किया हमने, फिर उसकी वैल्यू पुट किया हमने। वैल्यू पुट करने के बाद x इक्वल टू 1 इन बोथ द साइड्स, x इक्वल टू 1 पुट करने के बाद फाइनली वी गॉट 0। तो दैट मीन्स 0 इज द आंसर ऑफ f plus g of 1। ये तो सिंपल प्रॉब्लम था, ऐसा कुछ। अब इसके बाद जो हम ले रहे हैं वो थोड़ा सा
मतलब समझने का है आपको, हर मतलब माइनर वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उसका ये है, गिवन फॉलोइंग गिवन फंक्शन क्वेश्चन if the functions f of x equal to 5x square and g of x equal to under root 4 minus x, what is 4 minus x, then find the domain, of f plus g of x, f into g of x, ठीक है, ये फाइंड करना है, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस वन एंड f by g of x, इन सबके डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन फर्स्ट, read the problem in 2 times. If the function f of x equal to 5x square, g of x equal to under root 4 minus x, then find the domain of this one and this one. तो इन फंक्शन के डोमेन फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to write given part of the problem, given f of x equal to 5x square and g of x equal to 4 minus x, given two functions f of x equal to 5x square, g of x equal to 4 minus x. इसमें for f of x domain is minus infinity to plus infinity. क्लियरली दिख रहा है। For all x that means all x बोल दिया, that means ये जो रियल लाइन है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक चले, तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, that means x moves minus infinity to plus infinity. That's why we are writing here, we are putting here domain of f of x is minus infinity to plus infinity. Got it? And for g of x domain, g of x is domain is, अब यहाँ पे निकालना यू नो वेरी वेल अबाउट, समझने लायक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम व्हेन वी राइट रूट एक्स दैट मीन्स x ग्रेटर देन 0, व्हेन वी राइट रूट x that means x greater than equal to 0, because of x is not less than equal to 0,
because if x is negative then root x is imaginary number. That means x should be greater than equal to 0. X should be greater than equal to 0. That means x should be greater than equal to 0. In this concept, we can write 4 minus x is always greater than equal to 0. ठीक है, 4 minus x is always because of root 4 minus x. ठीक है, तो root 4 minus x, that means 4 minus x greater than equal to 0. But तो यहाँ 4 minus x greater than equal to 0, 4 तो आ जाएगा x minus 4 less than equal to 0. Got it? Less than equal to 0 and x less than equal to 4. You can write एक्सचेंज कर दीजिए साइन को, साइन एक्सचेंज करेंगे तो क्या आएगा, और अगर माइनस का मल्टीप्लाई किया हमने तो ये साइन अपोजिट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू 4, दैट मीन्स x की मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी. तो यहाँ पे हमने एक इंटरवल ले किया, ये 4 तो आ गया. अब इनिशियली x की वैल्यू दी नहीं है, दैट मीन्स इन्फिनिटी होगी. मतलब यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी की जगह इसकी वैल्यू आ गई 4, पॉजिटिव 4. गॉट इट? तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तो ऐसी चीज रहेगा, तो डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस. देयरफॉर माइनस इन्फिनिटी 4 इज डोमेन. Therefore gf of domain is this one. ये आ जाएगा डोमेन इसका, किसका, g of x. Got it? अब f of x, domain of f of x minus infinity to infinity, and domain, ये डोमेन किसका है, f of x का, ये डोमेन किसका है, g of x का. ठीक है, तो डोमेन ऑफ f plus g, therefore domain of f plus g is minus infinity to plus infinity intersection minus infinity to 4. That means इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस इन्फिनिटी टू 4, बिकॉज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस वन एंड दिस वन. दिस वन ही होगा इंटरसेक्शन, आप निकाल लीजिए. ये है जैसे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. प्लस इन्फिनिटी जब ये 4 आएगा तो 4 यहाँ कहीं आएगा, तो यहाँ पे जब x माइनस इन्फिनिटी टू 4 आए तो 4 तो इसके अंदर ही आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा 4. ठीक है, अगर ये 0 है तो 0 g minus infinity to 4 is the subset of minus infinity to plus infinity. इसका सबसेट है, दैट मीन्स कॉमन जो इंटरसेक्शन रहेगा वो यही है. दिस वन इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस वन. तो डोमेन ऑफ f plus g क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 4. सिमिलरली वी कैन राइट डोमेन ऑफ f into g. Similarly, domain of f into g is minus infinity to 4. वही कॉन्सेप्ट लगेगा, सिमिलरली कॉन्सेप्ट लगेगा, बस इसमें बस थोड़ा सा चेंज होगा डोमेन का. यहाँ पे जो 4 में माइनस इन्फिनिटी टू 4 है, यहाँ की इस कंडीशन में माइनस इन्फिनिटी टू क्या हो जाएगा, डोमेन. डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू 4 ओपन ब्रैकेट हो जाएगा. ये क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल. बिकॉज ऑफ g of x is not equal to 0.
because of g of x is not equal to 0। तो यहाँ पर याद रखिएगा डोमेन g of x क्यों आया है, क्योंकि g of x में हमने यहाँ पे दिया था नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स अगर मान लो ये 4 लास्ट में आ जाता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। g of x 0 हो जाएगा ना। आप देखिए g of x की वैल्यू कितनी है 4 माइनस एक्स। अगर हम x इक्वल टू 4 ले लें तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 तो अंडर रूट 0 मतलब 0। तो g of x कितना आ गया 0, जो पॉसिबल नहीं है, 0 नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ओनली लेस देन 4, नॉट इक्वल टू 4। मतलब लेस देन होगा पर इक्वल नहीं होगा x की वैल्यू g of x के लिए, इसी में कंडीशन आएगी। बाकी सभी के लिए डोमेन ये जो दिए हैं इसके लिए भी डोमेन ये रहेगा और सेम इसके लिए भी डोमेन यही रहेगा, याद रखिएगा। और बस इसमें पर डोमेन चेंज होगा बिकॉज ऑफ gx इज डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई वी आर नॉट पुटिंग ओवर देयर x इक्वल टू 4। x इक्वल टू अगर 4 करेंगे हम तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, तो याद रखिएगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने रहेगा। यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि 4 हम क्यों नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट क्यों आया है इसके डोमेन में। डोमेन तो सभी के लगभग सेम ही रहेंगे, बस थोड़ा सा अंतर आया है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा लास्ट वाले में कि यहाँ पे जो लास्ट वाला 4 इंक्लूड है ये दोनों में, इन दोनों में इंक्लूड है, इसमें एक्सक्लूड रहेगा। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और आपको समझने रहेगा। अब अपन जो इसके बाद स्टार्ट होगा तो अब इसमें नेक्स्ट फंक्शन का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। कंपोजिशन ऑफ, ये समझ में नहीं आया है तो एक बार इसको रिपीट करके देख लें, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है वो देख लीजिए। व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन? सपोज 3 sets are there, 3 sets are there, A, B and C. Define F, A to B and define G for B to C. इसको अपन लिख सकते हैं F such that A tends to B and G such that B tends to C. Then F of G, यहाँ से अगर हमने डायरेक्ट इसको डिफाइन किया तो F of G फंक्शन होगा, वो डिफाइन क्या होगा A to C। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मान लिया हमने सपोज x, y एंड z, तो यहाँ पे ले लें हम g ऑफ f ऑफ g ऑफ x, ये होगा f ऑफ g ऑफ x। इस टाइप से f of this one is the composition of functions। याद रखिए, this one is the composition of function। Earlier we have seen
मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है, दैट इज डिफरेंट कंसेप्ट, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ये होता है मल्टीप्लिकेशन, याद रखिए, जस्ट वी हैव सीन, बट हियर वी आर टेकिंग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कॉन्सेप्ट, हम फंक्शन ऑफ कंपोजिशन कॉन्सेप्ट करते हैं, राइट नाउ वी आर डूइंग फंक्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस या फंक्शंस। तो यहाँ पर f कंपोजिशन ऑफ g ऑफ x इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है, याद रखिए, कंपोजिशन ऑफ, ये कॉन्सेप्ट जो दिया जाता है ये दिया जाता है f ऑफ g, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें सपोज एक छोटा सा प्रॉब्लम लेके चले, इफ f ऑफ x इक्वल टू, क्वेश्चन है, if f of x equal to 2 by x plus 5 and g of x equal to x square minus 1, then find f composition of x, ठीक है, f composition of x and g composition of x, g composition of f of x, ये फाइंड करना है। अब यहाँ पे 1 दिया हुआ है इसकी वैल्यू, ठीक है, ये फाइंड करना है, या 1 या 3 जो भी नंबर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं सॉल्यूशन, गिवन है, ये चीज गिवन है, f of x इक्वल टू दिस वन, g of x इक्वल टू दिस वन, यहाँ पर वी नो दैट, पहले गिवन फंक्शंस कौन कौन से हैं, f of x इक्वल टू 2 by x plus 5 and g of x इक्वल टू x square minus 1, ठीक है, x square minus 1, then we have to find f composition of g of x and g composition of f of 3, ठीक है, फाइंड करना है। we know that so first of all we have to put given portion of the problem, then what we have to find we have to put again, and then what we know what we know about a given concept we have to put. So we know that f composition of g of x equal to f of g of x। अब बाय इक्वेशन, अब अगर अपन इसको इक्वेशन 1 दे दें, बाय इक्वेशन 1, ठीक है, बाय इक्वेशन 1 2 बाय, यहाँ x है, f of x याद रखिए, f of x डिवाइड बाय 2 अपॉन x प्लस 5, तो यहाँ f of gx क्या होगा, x को gx से रिप्लेस कर दें, x को gx से रिप्लेस करते हैं तो क्या आएगा, f of gx इक्वल टू 2 by gx plus 5, that means 2 of gx plus 5 by equation 1, वही तो लगाया आपने डेफिनेशन। अब g of x को क्या देखते हैं अपन,
जी ऑफ एक्स को, ठीक है। इसको अगर हमने डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन दिया, ये इक्वेशन 1 दे दो और इसको इक्वेशन 2 दे दो, व्हाट इज। तो यहाँ पे देखिए 2 बाय जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5, दैट मीन्स इसका ये क्या आ जाएगा, बाय इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 2 जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ कंपोजिशन ऑफ जी ऑफ एक्स। ये आ गया फर्स्ट आंसर आपका। दिस वन इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट आंसर। सेकेंड वन we have to find g of x. Consider g of f of 3, that means g of f of 3, तो g of f of 3 कितना होगा, g of f of 3 की वैल्यू बाय इक्वेशन 1, तो f of 3 होगा 2 बाय 3 प्लस 5, f of 3 पुट कर लीजिए x की जगह, we have to put 3 instead of x, तो 2 बाय 3 प्लस 5, that means g of 2 by 8, 2 by 8, that means g of 1 by 4. अब g of 1 by 4, that means g of x equal to क्या है फिर, g of x equal to x square minus 1, that means 1 by 4 square minus 1, that means 1 upon 16 minus 1, that means 15 by minus 15 by 16. This one is the answer of second concept. इसका आंसर क्या आएगा, G composition of f of 3 equal to minus 15 by 16 and f composition of G of x equal to 2 by x square plus 4. So this is the simple way to solving this type of problem related to composition of functions. अब देख लेते हैं composition of functions. I think clear हो गया होगा आपको. Now we have to do inverse function. We have to see inverse function. वो भी दिखा देते हैं concept. I think ये पूरा क्लियर हो गया होगा आपको. कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंफ्यूजन आप नहीं लेना. एल्जेब्रिक g into f and g composition of f, both are different concepts. Okay, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा ये concept है. And now we have to see inverse function. अब what is inverse function? इनवर्स फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे क्या है, इनवर्स. Inverse function. Suppose two sets are there, A and B, and one function f define A to B is 1 1 and on 2. याद रखिएगा 1 1 on 2 फंक्शन का ही इनवर्स होगा. If function is 1 1 on 2, then you can find inverse of that function. If function is not 1 1 and on 2, 1 1 and on 2 is not 1 1 and on 2, that means you can't find inverse of this function. If function, important concept क्या है, उस किसी भी फंक्शन के इनवर्स का, कि वो फंक्शन 1 1 on 2 होना चाहिए. Function should be 1 1 and on 2. That means if 1 1 on 2, then
एफ इनवर्स यहाँ से ये एफ इनवर्स यहाँ मान लिया एक्स है वाई है, तो यहाँ पर ये एफ इनवर्स डिफाइन है, एफ इनवर्स डिफाइन बी टू ए, एफ इनवर्स डिफाइन बी टू ए where f inverse of x equal f inverse of y equal to x, और यहाँ पे क्या रहेगा f of y equal to f of x, क्या आ जाएगा ये f of x equal to y, और यहाँ पर f inverse y equal to x। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ये 1 1 on 2 है ये फंक्शन, देन वी कैन फाइंड इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। तो इनवर्स का एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि 1 1 on 2 होना चाहिए, तभी हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। याद रखिएगा ये है डोमेन ऑफ एफ, दिस वन इज द डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ, और ये है रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ। जब ये यही आ जाएगा तो ये क्या आएगा रेंज ऑफ एफ इनवर्स, और ये आ जाएगा डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। याद रखिएगा ये डोमेन होगा एफ इनवर्स का और ये रेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सिंपल एक प्रॉब्लम लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। व्हाट इज इनवर्स फंक्शन? इफ फंक्शन इज 1 1 on 2 देन वी कैन फाइंड इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शंस। तो या फाइंड कर सकते हैं। इफ फंक्शन इज नॉट 1 1 on 2 then we can't find f inverse because of f inverse does not exist, ठीक है। If f is 1 1 on 2 function with a question ले लेते हैं, question 1, if f is 1 1 on 2 function, if f is 1 1 on 2 function with 1 1 on 2 function with f of x equal to f of x equal to 9 minus 5x, 9 minus 5x, then find f inverse minus 1, f inverse minus 1, ये हमको फाइंड करना है। अब ध्यान रखिएगा कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। इफ f is 1 1 on 2 function, हमने अगर इतना ही रीड किया, इफ f is 1 1 on 2 function, that means 1 1 on 2 होने के कारण f inverse एग्जिस्ट होगा, ठीक है, with f of x 9 minus x। मतलब गिवन क्या है, गिवन फंक्शन 1 1 on 2 फंक्शन 1 1 on 2 function f such that f of x equal to 9 minus 5x, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन 1, हमको क्या फाइंड करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड, now we have to find f inverse minus 1, f inverse minus 1, ये हमको फाइंड करना है। जो फाइंड करना है हम उसको अज्यूम कर लेते हैं। लेट f inverse minus 1 equal to m, ले लिया हम f inverse
-1 इक्वल टू m, और इसको इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन नंबर 2। ओके, देन we can write further simplification, -1 equal to f of m, because f 1 on 2 function, f of m -1 equal to f of m by equation 1, by equation 1 क्या होगा, 9 minus 5m, 9 minus 5m by equation 1. By equation 1 we can write this one, because of f of x equal to 9 minus 5x. Then we can write this one 5, तो क्या हो जाएगा, 5m को इधर 5m equal to 9 plus 1, that means 5m equal to 10, m equal to 10 by 5, that means m equal to 2. अब m equal to 2 आ गया, और m equal to हमने क्या assume किया था, इक्वेशन 2 f inverse, therefore f inverse -1 equal to 2 by इक्वेशन 2। यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा, इक्वेशन 2 से हमने m की जगह क्या शिफ्ट कर दिया, f इनवर्स -1। यही तो फाइंड करना था, यही फाइंड करना ना, we have to find f इनवर्स -1, हमने लिया है, सिंपल, जो दिया है 1 on 2 फंक्शन उसको लिखा है, जो फाइंड करना है उसको लिखा है, फिर अस्यूम कर दिया, अगर मान लो f इनवर्स -m इक्वल टू m है, देन बाय द सिंप्लीफिकेशन -1 इक्वल टू f of m, बिकॉज ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज f is 1 on 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f of x इक्वल टू 9 माइनस f of x है, तो 9 माइनस 5m हो जाएगा, 5x की जगह, तो -1 इक्वल टू 9 माइनस 5m, that means 5m इक्वल टू 9 plus 1, m इक्वल टू 10 by 5, m इक्वल टू 2, और m इक्वल टू f inverse -1, here and final got the answer is f inverse -1 equal to 2। इतना समझ में आ गया होगा। अब आज के लिए इतना ही देखें, और इसकी एक्सरसाइज आप लोग कर लेंगे 6.2, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू स्टार्ट लिमिट्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग एक बार रिपीट करके वीडियो देखेंगे, अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो उसको वापस से समझने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद देन यू हैव टू डू योरसेल्फ एक्सरसाइज नंबर 6.2 इन योर टेक्स्ट बुक। ओके।